اکبر کی چترشالہ 1558 سے 1572 عیسوی تک آگرہ، 72 سے 85 تک فتح پور سیکری، 85 سے 1605 لاہور، 1603 سے 1601 پٹنہ آگرہ۔ مغل کلا کا سروادھک وکاس اکبر کے سمے میں 1585 سے 1601 عیسوی کے بیچ ہوا۔ مغل شاسکوں میں اکبر نے سروپرتم چترشالاؤں کی اور دھیان آکرشت کیا۔ اکبر کا شاہی پستکالیہ اکبر دلی، لاہور میں تھا۔ اکبر نے بچپن میں عبدالصمد سراجی سے کلا کی شکشا پراپت کی تھی۔ آئین اکبری کے انوسار اکبر نے ہیمو کا چتر بھی بنایا تھا۔ اکبر نے بڑے بڑے کلاکاروں کو اپنے محل میں آشرے دیا اور انہیں دھن اور سمان بھی دیا۔ اکبر اپنے دربار میں پرتیک سپتاہ چتر پردرشنی کا آیوجن بھی کرتا تھا و شریشٹھ کෘتیوں کو اچت سمان بھی پردان کرتا تھا۔ اکبر کے کلا ساہتیہ پریم کی تلنا ہندو سمراٹ چندرگپت وکرمادتیہ II سے کی جاتی ہے۔ اکبر کالین پرمکھ چترکار۔ آئین اکبری کے انوسار اکبر کے سمے میں 100 سے ادھک چترکار تھے جو فتح پور سیکری کے چترشالہ میں کاریرت تھے۔ آئین اکبری میں 13 اچ کوٹی کے ہندو چترکار اور 4 مسلم چترکار کا الیکھ ملتا ہے۔ 13 ہندو چترکار مادھو، کیشو، جگناتھ، ساونت، بساون، مکند، تاراناتھ، ساول داس، کھیمکرن لال، مہیش، رام، ہری ونش۔ 4 مسلم چترکار فاروق بیگ کلمان، میر سید علی تبریز، ابوالصمد سراجی، مسکین بھارتی مسلمان۔ تجھ کے بابری بابر نامہ آتم کتھا بابر دوارا رچت گرنتھ ہے جو ترکی بھاشا میں ہے۔ واقعات بابری گرنتھ بابر نامہ کا فارسی انواد ہے۔ اس کی رچنا رحیم خان خانق نے اکبر کے سمے میں کی تھی۔ واقعات بابری کے انوسار اکبر کے سمے 19 اچ کوٹی کے ہندو و 3 اچ کوٹی کے مسلم چترکار تھے۔ آئین اکبری کے انوسار اکبر کے سمے کے شریشٹھ ہندو چترکار 13۔ آئین اکبری کے انوسار اکبر کے سمے کے شریشٹھ مسلم چترکار 4۔ واقعات بابری کے انوسار اکبر کے کال کے شریشٹھ ہندو چترکار 19۔ واقعات بابری کے انوسار اکبر کے کال میں شریشٹھ مسلم چترکار 3۔ میر سید علی جدائی۔ میر سید علی صفوی شیلی کا فارسی چترکار تھا۔ 16ویں صدی کی دوسرے چرن میں تبریز میں اس کا جنم ہوا تھا۔ 1555 عیسوی میں یہ ہمایوں کے ساتھ بھارت آیا تھا۔ میر سید علی چترکار تتھا لپی لیکھن کا اتم ابھیاس کر لیا تھا۔ میر سید علی کوی بھی تھا اور جدائی نام سے کویتا بھی رچنا کرتا تھا۔ میر سید علی گرامیہ چترن کرنے میں پارنگت تھا۔ حمزہ نامہ کے آرمبھک 4 کھنڈوں کے چترن پر ایرانی پربھاؤ دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کا پریویکشن کاریہ میر سید علی نے کیا تھا۔ میر سید علی کو ہمایوں دوارا نادر الملوک یگ کا آچاریہ کی اپادھی پردان کی گئی تھی۔ میر سید علی نستعلیق لپی کا اچھا لپی تھا۔ میر سید علی کے پرمکھ چتر گائے کا ودھ کرتے جہاں قصائی لیلی کے سمکھ زنجیروں سے بندھا مجنوں کا جنم، بہرام تتھا گڈیریا۔ ابوالصمد سراجی۔ ابوالصمد کا جنم ایران کے پرسدھ نگر شیراز میں ہوا تھا۔ ابوالصمد سکست شیلی کا اچھا لیکھک تھا کیونکہ وہ چترکار کے روپ میں زیادہ وکھیات تھے۔ یہ فارسی سولپیکار اور چترکار تھا۔ اس نے ہمایوں نے سری قلم کی اپادھی پردان کی تھی۔ یہ 1555 عیسوی میں ہمایوں کے ساتھ بھارت آیا۔ 1576 عیسوی میں ابوالصمد کو اکبر نے فتح پور سیکری کی
तख्ता का अधीक्षक व 1584 ईस्वी में मुल्तान का दीवान बना दिया था। अबुल समद ने अपने अंतिम समय में अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन ए इलाही को अपनाया था। अबुल समद के पुत्र का नाम शरीफ था, जो जहांगीर सलीम का सहपाठी था। दसावंत अबुल समद का प्रमुख शिष्य था। हमजनामा में अंतिम 8 खंडों का निर्देशन अबुल समद ने किया था। इसकी भी प्रारंभिक शैली ईरानी सफ़वी शैली के समान थी। बाद में इसमें भारतीय प्रभावों को ग्रहण किया गया था। अबुल समद ने बिहजाद के चित्रों को संशोधित किया और भित्ति चित्र भी बनवाए थे। अबुल समद सिराजी पशु चित्रण में सिद्धहस्त था। मीर सैयद अली व अबुल समद को मुग़ल शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुग़ल शैली की स्थापना मुग़ल काल में अकबर के समय हुई। हमजनामा पर सर्वाधिक चित्रण अबुल समद सिराजी की देखरेख में हुआ था। दसवंत कहार जाति का था। दीवारों पर चित्रण कार्य को करता देख कर अकबर उसे अपने साथ लेकर आया था। दसवंत अबुल समद के शिष्यों में अग्रणी था। दसवंत जयपुर आराई पद्धति में पारंगत कलाकार था। रज़्मनामा के 21 चित्रों पर दसावंत का नाम मिलता है। दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का अंकन उच्च कोटि का किया है। दसवंत ने भयंकर राक्षसी आकृतियों को भी चित्रित किया है। 1584 ईस्वी में दसवंत ने पागल होकर आत्महत्या कर ली। आईने अकबरी के अनुसार दसवंत को इस युग का विशेषज्ञ कहा गया है। दसवंत को मुग़ल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। बसावन अकबर का प्रिय चित्रकार था। बसावन लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया। मुग़ल शैली में अनेक ग्रंथ की चित्रण रचना की व लगभग 200 चित्रों का निर्माण किया। बसावन ने रज़्मनामा, बहारिस्तान जामी, दराबनामा, अकबरनामा आदि ग्रंथों पर चित्रण कार्य किया था। रायकृष्ण दास के अनुसार बसावन पुष्टिका बनाने, आकृति के आलेखन में भूते हुए रंग लगाने, छवियाँ लगाने तथा चित्रकारी के कई विद्वानों को विधाओं में सर्वोत्तम था। बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे ज़्यादा था। बसावन के पुत्र का नाम मनोहर था, जो जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार था। बसावन अकबर के समय में स्टिल लाइफ चित्र का प्रयोग करता था। अबुल फजल ने के अनुसार बसावन पृष्ठभूमि निर्माण, वस्तुओं के यथारूप चित्रण तथा कला के अन्य कार्यों में अपने समझ का अद्वितीय कलाकार था। बसावन के प्रमुख चित्र शेख अब्दुल कसाब एवं एक दरवेश संत के दर्शन करते हुए, एक पुरुषकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजनू, पुल पार करते हुए हाथी। प्रथम विकर्ण चित्रों अकबर के दरबार का प्रसिद्ध छवि चित्रकार बसावन था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार भी था। बसावन को उस्ताद नाम से पुकारा जाता था, जो मुग़ल चित्रकार में एक सम्मान था। मिस्किन, यह अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार था और यह भारतीय मुसलमान था। यह पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रण करता था। प्रमुख चित्र: धोखेबाज पत्नी, तोप खींचते हुए बैल, गिरि गोवर्धन, हरिवंश पुराण। फारूक बेग, यह कलमाक का निवासी था, जो 1580 ईस्वी में काबुल से भारत आया था। इसके चित्रों में मध्य एशियन प्रभाव था, किंतु बाद में व्यक्ति चित्रण के रूप में उसने अपनी निजी शैली विकसित की थी। फारूक बेग ने अकबर व जहांगीर दोनों के समय में कार्य किया, परंतु इसे ख्याति जहांगीर के समय में अधिक मिली। जहांगीर के समय में फारूक बेग दक्षिण शैली के संपर्क में आया, यही से इसने
समूह चित्रण प्रारंभ किया। प्रमुख चित्रों में आदिल शाह की सभी प्रमुख चित्र हैं जो जहांगीर काल की है। केशव अकबर के समय में 6 प्रमुख गुजराती चित्रकार थे। केशव सर्वश्रेष्ठ गुजराती चित्रकार था। ईसाई पादरियों द्वारा चित्रित बाइबिल के मेरी तथा क्राइस्ट के चित्र को अकबर को भेंट किया गए थे। उस चित्र की अनुकृतियाँ केशव ने बनाई थी। केशव ने आत्मचित्र भी बनाए थे। हाजी हबीब उल्लाह अकबर ने इसे गोवा भेजा था जो कहा कि यूरोपियन कला की जानकारी लाया था। नन्ना फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकरण करता था। अकबरकालीन प्रमुख चित्रित ग्रंथ इस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा जाता है। भारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक कथाओं के चित्र। भारतीय कथाओं के चित्र हमजानामा, खमसा निजामी, तूतीनामा, दीवाने हाफिज। भारतीय कथाओं पर चित्र रस्मनामा, रामायण, अनवर सुहेली। ऐतिहासिक ग्रंथों के चित्र शाहनामा, तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, जमी-उत-तवारीख। हमजानामा हमजानामा अमीर ए हमजा का फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर ए हमजा की कहानी का वर्णन है। हमजानामा के कुल 360 कहानियों हैं जो मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के साहसिक कार्यों का वर्णन है। हमजानामा को अकबर ने 12 खंडों में विभाजित करवाया था। इसके प्रत्येक खंड में 100 जुज़ थे। इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए हैं। इस चित्रावली के प्रत्येक चित्र में सम्मुख भाग पर काजवीन मुंशी चित्रों पर विवरण लिखते थे। हमजानामा का फारसी अनुवाद अताउल्लाह काजवीनी ने किया था। इसे लगभग 50 चित्रकारों ने 15 वर्षों में पूरा किया। हमजानामा चित्रों पर फारसी प्रभाव अधिक है। हमजानामा चित्रों का निर्माण 67.5x50 सूती कपड़े पर आरोपित कागज पर हुआ है। अमीर हमजा के 150 चित्र वर्तमान में उपलब्ध है, जिसे गुल्लुक ने संग्रहित कर सन 1925 ईस्वी में वियना से छपवाया था। 61 चित्र आर्ट म्यूजियम वियना, 25 चित्र साउथ केंसिंगटन संग्रहालय लंदन, 15 चित्र अमेरिका के विभिन्न संग्रहालय में हैं। वर्तमान में भारत में 6 चित्र ही उपलब्ध है। 2 चित्र भारत कला भवन से, 2 चित्र मुंबई, 1 चित्र हैदराबाद, 1 चित्र बड़ौदा संग्रहालय। हमजानामा चित्रों की विशेषता। हमजानामा के चित्र अलंकारिक न होकर घटना चित्र है। हमजानामा के प्रारंभिक चित्रों पर ईरानी प्रभाव अधिक है। एक चश्मे के चेहरों की अधिकता है। हास्य का चित्रण भारतीय रंग से हुआ है। चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति के अंकन में भारतीय शैली व फारसी शैली का मेल है। संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है। हमजानामा के चित्र गांव के कुएं, स्त्री, गांव का कुआं, हीरा काटने की मशीन हमजानामा के महत्वपूर्ण बिंदु। हमजानामा अकबर के काल की प्रथम चित्रित पांडुलिपि थी। अताउल्लाह काजवीनी के अनुसार हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। रायकृष्ण दास के अनुसार यह पूर्णतया अकबर के समय में ही चित्रित हुई। हमजानामा कहानी अमीर ए हमजा कुल कहानियाँ 360 खंड 12 कुल चित्र 2400। माध्यम सूती कपड़ा माप 67.5x50। तूतीनामा इस ग्रंथ में तोते के प्रेम लाप का वर्णन है। तूतीनामे में कुल चित्रों की संख्या 103 है। तूतीनामा ऐसी प्रथम पांडुलिपि थी जिसमें गहरी छायांकन पद्धति का प्रयोग हुआ। वर्तमान में यह ग्रंथ चेस्टर बेस्टियन संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। दीवाने हाफिज 1610 ईस्वी। इस ग्रंथ में हाफिज सिराजी की शेष शायरियाँ है, जिसमें सभी
समस्याओं का निदान बताया गया है। मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि दीवान हाफिज है। इस पांडुलिपि में हाशिया चित्रण सर्वप्रथम किया गया है। सर्वप्रथम ईरानी शैली में बॉर्डर व हाशियों का प्रयोग हुआ था। वर्तमान में यह ग्रंथ रजा पोथीखाना रामपुर यूपी में संग्रहित है। खमसा निजामी 1596-97 ईस्वी निजामी का काव्य और दशवंत तथा बसावन की कृतियों की तरह प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में संग्रहित है। भारतीय कथाओं के चित्र पंचतंत्र विष्णु शर्मा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में ईरानी संस्करण अनवर सुहेली है। पंचतंत्र का अरबी नाम कलीला दिमना है। अकबर ने कलीला दिमना का फारसी अनुवाद आयर दानिश नाम से करवाया तथा उसका चित्रण भी करवाया। आयर दानिश में 96 चित्र बने हैं, जिसमें पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। अबुल फजल ने इसके चित्रण में बहुत ही योगदान दिया था। पंचतंत्र लेखन विष्णु शर्मा, कलीली दिमना, अनवर सुहेली। अरबी अनुवाद आयर दानिश, अकबर के समय फारसी में अनुवाद अनवर सुहेली, फारसी अनुवाद ईरानी संस्करण। हज़्मनामा 1582 से 1589 ईस्वी। यह ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद है। हज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद अबुल कादिर बदायूनी ने की थी। इस ग्रंथ में 169 चित्र है जो 3 जिल्दों में विभक्त है। हज़्मनामा चित्रावली में दशावंत के बनाए ये 21 चित्र प्राप्त होते हैं। हज़्मनामा वर्तमान में सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। इसके पूर्व इसको पूरा करने में 50 चित्रकारों का योगदान रहा है। इसमें प्रमुख चित्रकार दशावंत, बसावन, मिस्किन व लाल महत्वपूर्ण है। कर्नल T.H. हैंडले ने हज़्मनामा के 148 चित्र अपनी पुस्तक में छापे थे। रामायण। अबुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। रामायण का चित्र मुख्य रूप से 5 चित्रकारों ने किया, जिसमें बसावन का कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। मीर सैयद अली अबू समद फारूक बेग दशावंत बसावनिया। इस ग्रंथ का वर्तमान संग्रहालय सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय जयपुर में है। भगवद गीता। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। अर्थवेद। इसका फारसी अनुवाद हासी इब्राहिम सर हिंदी ने किया। राज तरंगिणी। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया था। नल दमयंती। इसका फारसी अनुवाद फैजी ने किया। लीलावती। इसका फारसी अनुवाद फैजी ने किया। हरिवंश पुराण। इसका फारसी अनुवाद मौलाना श्री ने किया। ऐतिहासिक कथाओं के चित्र अकबरनामा। अकबरनामा अकबर की आत्मकथा है। इसके लेखक अबुल फजल है, जिसमें 117 चित्र है। वो प्रति विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। यह ग्रंथ 3 जिल्दों में बनी है, जिसकी तीसरी जिल्द आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। आईने अकबरी को पुनः 5 अध्याय में अबुल फजल की जीवनी मिली है। आईने अकबरी के 5वें अध्याय में अबुल फजल की जीवनी मिली है और 4th अध्याय में अकबर की शासन प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अकबरनामा अकबर के समय की सर्वोत्तम कृति है, जिसमें सलीम का जन्म वाला चित्रण सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अकबरनामा का सर्वोत्तम चित्र सलीम का जन्म। चित्रकार केशव संग्रहालय विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन। उद्देश्य सिख सलीम के जन्म के 6 उद्देश्य। प्रथम विभाजन दृश्य महल के बाहर दान देने वालों को दर्शाया गया है। द्वितीय विभाजन दृश्य महल के अंदर बरामदे के वादकों को दर्शाया गया है। तृतीय विभाजन दृश्य सलीम का स्नान व स्त्रियों का जमघट। तृतीय बच्चा माँ का कमरा। 5वां
गर्दन फुलाए मोर छत पर बैठे हुए छठा क्षितिज दर्शाया गया। बकायत बाबरी यह ग्रंथ तुजु के बाबरी बाबरनामा का फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ का अनुवाद 1558 ईस्वी में अबुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था। खान खाना ने अकबर को यह प्रति भेंट की थी जिसका चित्रण अनेक बार अन्य प्रतियों में हुआ है। इस ग्रंथ को लगभग 48 चित्रकारों ने चित्रित किया। इसमें लगभग 144 चित्र प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ का संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन है। तारीख ए खानदान तैमूरनामा। इस ग्रंथ में तैमूर वंश का इतिहास मिलता है। वर्तमान में यह ग्रंथ खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। यह प्रमुख रूप से दसावन द्वारा चित्रित की गई है। इस ग्रंथ में तैमूर से लेकर अकबर के 1577 ईस्वी तक का इतिहास एवं चित्रण मिलता है। इस ग्रंथ में कुल 132 चित्र प्राप्त हुए। तारीख ए अल्फी दुनिया का इतिहास। यह ग्रंथ 1580-1590 ईस्वी में मध्य चित्रित हुआ। इस ग्रंथ को मुल्ला शाह मोहम्मद व जफर बेग ने लिखा था। शाहनामा। यह ग्रंथ फिरदौसी द्वारा लिखा गया था जिन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में ईरान के राजाओं का इतिहास है। इस ग्रंथ का चित्रण अकबर के काल के अंतिम समय में चित्रित किया गया था। इस प्रति में जामी नामक कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। इसका संग्रह चेस्टन बेटिंग संग्रहालय डबलिन में है। बाबर भारत आते समय शाहनामा का एक प्रति लेकर आया था। बाबरकालीन प्रति वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। मुंतउ-उत-तवारीख। इसमें हिंदुस्तान का आम इतिहास मिलता है। इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल कादिर बदायूनी ने किया। अकबरकालीन चित्र की प्रमुख विशेषता। अकबरकालीन चित्र की प्रमुख मुख्य कृतियाँ प्राय एक चश्मा बनाई गई है। रेखाएँ भारतीय गोलाई लिए हुए हैं। चित्रों के बीच में सुलिपि की पट्टियाँ खींची गई है। अकबर के समय में चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ। सफ़ेद रंग का प्रयोग रंग को हल्का करने के लिए किया गया है।